ब्राह्मणों भारत छोड़ो, अपर कास्ट अशराफ मुस्लिम भारत छोड़ो। भाई तू पागल है, क्या बोल रहा है तू यार? क्यों सर, अगर ब्राह्मण भारत छोड़ रहे हैं तो ये लोग तो 700 साल तक रूलिंग क्लास थे भारत में, इनको नहीं जाना चाहिए? ये क्या हो गया सर को यार, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो सर की जब फटती है ना तो ऐसी शक्ल बनाते हैं। வடக்குலேருந்து வந்தவன் அவன் சாமியை ஊருக்குள்ளே வச்சுட்டு நம்ம சாமியை ஊருக்கு வெளியே துரத்திட்டான். அவன் சாத்திரத்தை உள்ளே கொண்டு வந்து மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்னு பிரித்து நம்மளை மோசம் பண்ணிட்டான். எங்கே அவன் உன் நண்பன் தானே, அவன் உன்னை உன் கோயில் கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ளே விட்டுருவானே? என்ன அயர்வாள், உங்கள் கோயில் கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ளே உங்கள் நண்பனை உள்ளே விட்டுருவேல? அது எப்படின்னா முடியும்? அதெல்லாம் முடியாதுண்ணா. புரிஞ்சுத? என்ன வேல்முருகன் அமைதி ஆயிட்டீங்க? காவியில் கரப்பட்டுருச்சு போல இருக்கே. துவைச்சு போட போறியா இல்லை கழட்டி வீச போறியா? முடிவு உன்னோடது. ஏய் வாடா. சமுத்திரமணி தம்பி, சமுத்திரமணி கூப்பிட்றாருண்ணா. நீ மட்டும் எதையோ பேசிட்டு போயிட்டா அதுக்கு நாங்கள் சொல்கிற பதில கேட்காம போனா எப்படி தம்பி? அப்படியே கொஞ்சம் ரிவெல்ஸ் கேர் போட்டு வாக்கண்ணா வா. மாயோன் மேய காடுரை உலகமும் சேயோன் மேய மைவரை உலகமும் வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும் வர்ணன் மேய பெருமணல் உலகமும் முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் என சொல்லிய முறையான் சொல்லவும் படுமே. இது என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாது. இமயவில் வாங்கிய ஈச்சடை அந்தணன் உமையமர்ந்துயர்மலை இருந்தனாக ஐயிருத்தலையின் அரக்கர் கோமான் தொடி பொலித்தட கையின் கீழ் புகுந்த மலை எடுக்கல் செல்லாது உழைப்பவன் போல். இதாவது என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாது. தமிழ் தெரியும் இல்லையா? நான் ரெண்டாவதா பாடினது 8 தொகையில வர கலித்தொகை செய்யுள். அது சங்க இலக்கியம்ப்பா. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, சிவபெருமானும் பார்வதியும் கைலாய மலையில இருக்கும்போது ராவணன் கீழே இருந்து மலையை அசைச்சு பார்க்க பெரிய முயற்சி செய்தான். அதான் இதோட அர்த்தம். நான் முதல்ல ஒன்று சொன்னேனே, அது தமிழ் அகராதியிலேயே முதல்ல எழுதின நூல் தொல்காப்பியம். அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, மாயோன் அதாவது பெருமாள், சேயோன்னா முருகன், வேந்தன்னா இந்திரன், அதோட வர்ணன் அவங்க எல்லாம் எந்தெந்த தமிழ் நிலங்களுக்கு கடவுள்னு தெளிவா சொல்றாரு தொல்காப்பியர். இப்ப எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா, பல 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தமிழர்கள் இந்த சாமியை கும்பிட்டாங்கன்னா அது தமிழரோட கடவுளா இல்லையா? தலைமுறை தலைமுறையா ஊர் ஊரா முருகனுக்கும் சிவனுக்கும் பிள்ளையாருக்கும் பெருமாளுக்கும் அம்மனுக்கும் கோயில் கட்டி கும்பிடுறமே, அது உன் கண்ணுக்கு தெரியல? நீ பார்க்கல? உங்களுக்கெல்லாம் ஊருக்கு வெளியே இருக்கிற காவல் தெய்வம் மட்டும்தான் தமிழரோட கடவுளா? சரி, அதை விடுப்பா. எங்க கிராமத்துல ஒரு ஐயர் கூட கிடையாது. அவங்க எங்க ஊர்ல இருந்ததும் கிடையாது. எங்க வீட்டு சடங்குல கூட அவங்களுக்கு எந்த பங்களிப்பும் கிடையாது. எங்க கிராம கோயில் கருவறை இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள அவங்களால வரக்கூட முடியாது. என்ன மூர்த்தி ஐயரே, எங்க கோயில் கருவறைக்குள்ள நீங்க ஏதாவது வர முடியுமா? அது எப்படின்னா முடியும்? நீங்க வரக்கூடாதுன்னு ஏதாவது உங்க சாஸ்திரம் சொல்லுதா? சாஸ்திரம் சொல்லண்ணா. இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ஊர்ல எத்தனை கோயில் இருக்கு தெரியுமா? இங்க பிறந்த ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் குலதெய்வம் இருக்குதுயா. அது உனக்கும் சேர்த்துதான். அது ஐயரா இருந்தாலும் சரி, மற்ற யாரா இருந்தாலும் சரி, அந்த குலதெய்வம் யாருன்னு பார்த்தா ஒன்று அம்மனா இருக்கும், இல்லை ஊருக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய நம்ம காவல் தெய்வங்களாக தான் இருக்கும். நீ சொல்ற மாதிரி இவங்க எல்லாம் வடக்குல இருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த சாமிங்க எப்படி இவங்களுக்கு குலதெய்வமா இருக்க முடியும்? ஏய் வாடா. அட இருப்பா, நான் என்ன முழுசா முடிக்கல. நீ சொல்றதையே உண்மைன்னு வச்சுக்க. சரிப்பா, நீ சொல்றதையே உண்மைன்னு வச்சுப்போம். வடக்குல இருந்து வந்தவதான் நம்ம சாமியை ஊருக்கு வெளியே வச்சுட்டானியே வச்சுப்போம். ஆனா அதை விட தூரமா மேற்குல இருந்து 2 மதம் வந்திருக்கே, அவன் நம்ம சாமியை ஊருக்கு வெளியே இல்லை இந்த உலகத்தை விட்டே காணாம ஆக்கிடுவான். அவன் போன ஒவ்வொரு நாட்டையும் போய் பாரு.
அவன் வர்றதுக்கு முன்னாடி அங்கே என்ன கலாச்சாரம் இருந்ததோ அதை இப்போ மியூசியத்தில் தான் போய் பார்க்க முடியும். உன்னால ஏற்று கேட்க முடியுமா? உனக்கு அந்த தைரியம் இருக்கா? கலாச்சாரம் கலாச்சாரம்னு சொல்றியே, உன்னை காசு கொடுத்து பேச வைக்கிறானே வேற மதத்துக்காரன், அவனோட மதம் கால் வச்ச இடத்துல எல்லாம் அங்கே இருந்த கலாச்சாரம் என்ன ஆச்சுன்னு கிட்ட அவங்கிட்ட நீ கேட்க முடியுமா? கேட்டாதான் ஒன்று அவன் உயிரோட விட்டுருவானா? அது சரி, நீ காசு கூறும் தானே? நோ, சும்மா பேசிக்கிட்டே போகாதீங்கண்ணா. எங்க பகுத்தறிவு கழகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பேர்ல இருந்து ஜாதியே போச்சு. பேர்ல இருந்து ஜாதி போச்சா? ரொம்ப தமாசா பேசுறா தம்பி. உங்க பகுத்தறிவு கழகங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இங்க ஜாதி கலவரமே உருவாச்சு. உனக்கு தெரியலன்னா பழைய பேப்பரை படிச்சு பாரு. அது சரி, நீ வந்து ஒரு ஜாதி விடுதலை போராளி தானே? ஆமா. உன்னால இவங்க கழகத்துல தலைவராக முடியுமா? ஒன்னதான் அவங்க ஆக விட்டுருவாங்களா? என்னப்பா அமைதி ஆயிட்டீங்க? பாண்டியா, இவ்வளவு வருஷமா வா அண்ணன் கூட சுத்திட்டு இருக்கிறியே, என்னைக்காவது அவன் உன்னை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கானா? அதை பத்திலாம் நீ பேசக்கூடாது. பாடா, ஊருக்கு ஒரு நியாயம் உனக்கு ஒரு நியாயமா? தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ஜாதி இருந்தாலும் தமிழேன்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் ஒன்னாத்தாண்டா இருந்தாங்க. உங்க பகுத்தறிவு கழகங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தமிழங்கிட்ட இருந்து தமிழையே பிரிச்சுட்டீங்க. தமிழையும் தமிழனையும் காட்டுமிராண்டினீங்க. நம்ம கலாச்சாரத்தையும் சரித்திரத்தையும் கேவலமா பேசுனீங்க. இந்தியாவில இருந்து தமிழனை தனியா பிரிக்க பாக்குறீங்க. இப்ப வெளியே இருந்து வந்த மதங்களுக்கு மாமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பழப்பாடா? அடைச்சி அண்ணா, நம்ம கழகத்துல இருந்து போன் வந்துட்டே இருக்குண்ணா. நம்ம போஸ்ட் ஓட்டோ, நான் கிளம்புறேன். அட இருப்பா, போறதான் போற, இதான் முழுசா கேட்டுட்டுப்பா. அதென்ன காவிய களத்தி வீசுனி ஒரு டயலாக்கு? காவிய நான் ஏன்பா களத்தி வீசணும்? நம்ம முன்னோர்கள் தேவாரம் திருவாசகம் பாடி வளர்த்த தமிழை இன்னைக்கும் காப்பாத்துறதே நாங்க தானப்பா. என்னைக்காவது நீ சொல்லு பாப்போம், கருப்பு சட்டக்காரன் ஒருத்தன் தமிழ்ல காவியம் படைச்சிருக்கான்னு? அது சரி, நீங்க எல்லாம் ஜிவி போப்புக்கும் கார்டுவெல்லுக்கும் பிறந்த வெட்டி பசங்க தானே. இதை கேட்கறதுக்கு நீ யாருன்னு தானே கேட்கறா? நான் கேட்பேன். ஏன்னா நீ பேசும்போது நான் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா? நான் பேசுறத நீ கேளு. எங்க தமிழ் கடவுளை பற்றி பேச நீ யாரு? யார் உனக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுத்தது? உங்களுக்கு தான் கடவுளே இல்லையே. எவனோ கற்பனையில எழுதின கதைய எவனோ நடிச்சதை பார்த்துட்டு அதுல சொல்லியிருக்கத உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு வாழ்ற வாழ்க்கையை விட்டுட்டு இனிமேலாவது திருந்தி வாழுப்பா. உனக்கு தமிழை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும்னா ஒரு திருக்குறளையோ திருமந்திரத்தையோ போய் படி. சமுத்திரமணி, காவியில கரைப்பட்டா தோச்சா போயிரும். ஆனா கரையே ஆடையா போட்டு சுத்திரியே, இதை எப்ப நீ சுத்தம் பண்ண போறா? சரி, இப்ப நீ போலாம். தம்பி, நாங்க அமைதியா இருக்கிறது எங்களுடைய பலவீனம் இல்லை, அது உங்க அதிர்ஷ்டம். அதை துரதிர்ஷ்டமா மாத்தாம பார்த்துக்கிறது உங்களோட பொறுப்பு. Welcome to Kids Academy. As you know, every year we celebrate Martin Luther King's Day. But do you know that King is the only person in American history, apart from George Washington, whose memory is honored by a national holiday? Why is that if Martin Luther King wasn't even a president? Well, while George Washington created American government, Martin Luther King Jr. made Americans truly united. He fought for equality. Amazing.
But he didn't use any weapons. He fought just with words, and he won. It all started in his childhood in Atlanta, Georgia in the 1930s. Mike, that was Martin Luther King's childhood name, had a white playmate. They were best friends till they turned 6 and had to go to separate schools. One day, his friend told Mike that his father demanded them not to play together anymore. Mike was greatly shocked. That's when his parents explained to him about the segregation. It meant that black people had to sit separately from white people in buses and restaurants, use separate bathrooms, and even go to separate schools. White people in southern states thought it was natural to mistreat black people, even after abolishing slavery in 1865. Martin Luther King was angry that white people broke him up with his buddy. Since then, he started noticing inequality everywhere. Once, he was traveling with his dad on a bus, and they were pushed away from seats reserved for white people, having to stand up for 90 miles. Another day, a clerk in a shoe shop required Martin Luther King Jr. and his father to be serviced at the back of the shop. They refused. As that kept happening, King's idea to fight segregation became stronger. Martin Luther King was a bright student. He entered college at the age of 15. Later on, studying at a seminary, he learned about Mahatma Gandhi, a leader from India who fought for human rights in non-violent or peaceful way. In 1955, Martin Luther King started his civil rights activism by helping to organize the bus boycott against racial segregation in buses. All black people in Montgomery, Alabama refused to drive or ride public buses for 1 year. King was put in jail for it, but the peaceful protest ended the segregation in city buses. That was his first victory. In 12 years of his activism, Martin Luther King gave 2,500 public speeches and was in prison 30 times, but he never gave up. More than 250,000 people listened to his most famous speech called "I Have a Dream" that he gave in 1963. Soon after that, American government passed the Civil Rights Act in 1963 that made racial discrimination illegal. And the year after, Martin Luther King won a Nobel Prize for his peaceful stand for equality. Millions of Americans supported Martin Luther King, although some people were against his ideas. He was only 39 when he tragically died at the hands of a villain. However, Martin Luther King's words and peaceful actions changed American society forever. That's why the US government created a national holiday in his honor. कि तुम मेरी जानो तुम कौन से जात से हो। भैया बस इतना समझ लीजिए। तो इससे पहले कि तुम मेरी जानो तुम कौन से जात से हो। भैया बस इतना समझ लीजिए, आज आपके सामने खड़ा हूँ, कल जेल में भी हो सकता हूँ। जनरल वाला है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए रोटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका सेल्फ स्टीम। कभी किसी ने सैलरी पूछी होगी तो आप बढ़ा के ही बोले होंगे, क्योंकि आप चाहते हो ना वो सम्मान मुझे मिले। मैंने एक अटेम्प्ट दिया, मेरे 165 मार्क्स आए। हो सकता है अगर मुझे एक अटेम्प्ट और मिलता तो मैं जनरल के बराबर नंबर ले आता। जनरल के अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है। कर्नाटका में एक लड़का जा रहा था एग्जाम देने के लिए, उसने जनेऊ पहन रखा था, उसको नहीं जाने दिया। आप ब्राह्मण के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उसका जनेऊ देख के। मतलब मैंने भी बिल पढ़ा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पनिशमेंट है। मतलब अगर किसी को दुश्मनी निकालनी है, उसकी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं हुई, जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ है उसकी आइडेंटिटी तो पब्लिक हो गई, उसकी इज्जत तो गई। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सड़क पर कोई है जिसको कुछ नहीं आता है, उसको आप इक्वालिटी या इक्विटी देने के लिए राजा के बगल बैठा देंगे। तो चलो श्री गणेश करें। सभी साथियों, आप सभी का प्रयोगशाला की इस चतुर्थ प्रस्तुति में स्वागत है। बहुत खास प्रस्तुति होने वाली है। आज सजल ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है
कि भैया अपनी जात बताओ। तो आज जाति जाति का गेम खेला जाएगा और यहाँ पे किसी की जाति मुझे भी नहीं पता है, तो इससे पहले कि तुम मेरी जानो तुम कौन से जात से हो, और यहाँ पे किसी की जाति मुझे भी नहीं पता है, तो इससे पहले कि तुम मेरी जानो तुम कौन से जात से हो। भैया बस इतना समझ लीजिए कि आज आपके सामने खड़ा हूँ, कल जेल में भी हो सकता हूँ। जनरल वाला है। जेल जाने वाला काम ही ना करो ना। हाँ, यहाँ पे दर्शकों आपको मतलब पिछले 2 साल से हमारी हाइपरक्वेस्ट की टीम है, 15 से 20 लोग हम लोग काम करते हैं, और सच में ये मजाक से हटके पहली बार मुझे पता चला कि सजल कौन सी जात का है। नाम से पता चल जाए, जैसे हमें पता हो कि कोई पांडे है, शर्मा है, तो ठीक है, पता चल जाता है कि वो जनरल है, बाकी हम लोगों को किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन अभी रिसेंटली यूजीसी का बहुत ढेर सारा रिएक्शन आया, तो हम लोगों को भी ये हुआ कि इस पर बात करनी चाहिए और रिजर्वेशन पर बात करेंगे। रिजर्वेशन पर यूजीसी का क्या चल रहा है वो तो हम समझने का प्रयास करेंगे, और हमने यूजीसी बिल को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले रिजर्वेशन एज अ सोल्यूशन टू इंडियाज प्रॉब्लम, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हुई हैं और उसके लिए क्या रिजर्वेशन सही सोल्यूशन है, या फिर रिजर्वेशन सही है तो जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है क्या वो सही है, इस पर बात होनी चाहिए। और फिर जो तुम्हें भाई जानना है या जो तुम बताओगे मुझे क्या वो सही है, इस पर बात होनी चाहिए। और फिर जो तुम्हें भाई जानना है या जो तुम बताओगे मुझे यूजीसी बिल के बारे में और क्या इंटरनेट पर चल रहा है, दर्शकों के लिए क्या लाभदायक है जानना, बिल्कुल, तो वो सब आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और मतलब पर्सनली मतलब मेरे कॉलेज लाइफ में, कैंपस लाइफ में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने कभी ना अपने आसपास होते हुए देखा, ना मेरे फ्रेंड ग्रुप में किसी ने ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया है ना। आप बीएचयू से हो? हाँ, मैं बीएचयू से हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकता कि होता ही नहीं है, क्योंकि केसेस हमने देखे हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपका रिजर्वेशन पे क्या टेक है, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अपने कॉलेज लाइफ में, ये बताइए। तो अब मेरी जात आप पूछे हो तो चौरसिया हूँ, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में हूँ। और रिजर्वेशन पे बात करना, जैसे बहुत बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं। मेरी जात आप पूछे हो तो चौरसिया हूँ, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में हूँ। और रिजर्वेशन पे बात करना, जैसे बहुत बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं और देश की स्थिति को समझते हुए उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई कि चलो देश को हमें दोबारा खड़ा करना है। और 1947 या जब भी देश आज़ाद हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ से हम हिस्ट्री को थोड़ा अलग करते हैं और अब एक सिटीजन के लिए हम अच्छी व्यवस्था को आगे लेकर आते हैं, सो दैट कि सभी आगे बढ़ें। अब मैं जो बोल रहा हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, और मेरा रिजर्वेशन पर क्या व्यू पॉइंट है, किस तरह का रिजर्वेशन होना चाहिए। और मैं इस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया हूँ। जब मैंने आईआईटी क्रैक की है, तो आईआईटी में उस समय शायद जनरल का कट ऑफ 183 के अराउंड था आईआईटी पटना में, और आईआईटी पटना के लिए मैं 165 पर मुझे मिल गया था एडमिशन। अब मैं कैसे देखता हूँ रिजर्वेशन को, मेरी फैमिली में सच में ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, इसके नज़रिए से अगर मैं देखूं तो मेरी फैमिली में किसी को भी आईआईटी के बारे में नहीं पता था। ये ग्राउंड रियलिटी है, आप इसको चाहे फैब्रिकेशन मानो चाहे ना मानो, मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था आईआईटी क्या होती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के आते तक तो मुझे पता ही नहीं था, जबकि मैं अपने कॉलेज का टॉपर था, स्कूल का 12th का, और मैं यूपी में मेरिट में था। मेरिट का मतलब ये है कि जो यूपी के सबसे टॉप 21 बच्चे हैं, मतलब तो आप ये समझ लो 10 लाख लोग तो बोर्ड एग्जाम देते होंगे और भी ज़्यादा नंबर होगा, उसमें मैं 21 रैंक में हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि आईआईटी क्या होती है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी जो फैमिली है, अब ये मैं नहीं कहूँगा कि जनरल ने उनको ऐसा कुछ किया कि वो नहीं जानते थे, लेकिन समहाउ वो उसी, जैसे चौरसिया होते हैं ना, वो पान के काम में होते हैं, तो वो उसी में रहे और उनको नहीं पता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो मुझे पता चला वो अटेम्प्ट के बारे में। उसके बाद एक अटेम्प्ट था मेरे पास, तो कोचिंग के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर दोनों है, आर्थिक स्थिति भी खराब है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, वो सामाजिक जो भी हो उसमें। यहाँ पर अगर मुझे 165 पर
एडमिशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो एम्पावरमेंट मुझे मिली है। तो रिजर्वेशन से एक लाइफ तो सुधरी है जो मुझे दिख रही है। उसके बाद रिजर्वेशन मिलने के बाद मेरी क्या पर्सनल यात्रा रही है और यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं रिजर्वेशन को अब कैसे देखता हूँ, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये इसलिए बताया कि मैं रिजर्वेशन पे कुछ बोलूँ उससे पहले लोग जाने कि मैं रिजर्वेशन को देखा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस बैठ के जज कर रहा हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए ये सब हटा देते हैं, जाति पाति, जनरल, ओबीसी, ये हम एक बार एक सजग नागरिक के अनुसार सोचते हैं। एक बार के लिए हम गवर्नमेंट भी हटा दें, बीजेपी, कांग्रेस, या मैं ये मान लूं कि मैं 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गया हूं। अब मैं रिजर्वेशन को कैसे देखूंगा और कैसे इंप्लीमेंट करना चाहूंगा, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। बहुत बड़े बड़े थिंकर्स ने रिजर्वेशन को सोचा है, हो सकता है उन्होंने और डीपली सोचा हो, मैं कहीं गलत भी हूं, लेकिन मेरा क्या व्यू है, चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं बताता हूं। पहले तो किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, और मैं टीम में बार बार कहता रहता हूँ, आप लोगों से भी के भी साथ बैठता हूँ तो यही कहता हूँ, कोई भी काम करो ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें अचीव क्या करना है, तो कैसे करना है ये बात का है। अगर आपने ये सोच लिया मुझे पाकिस्तान को हराना है, तो आपको ये पता है ना हराना कैसे है, हराने का मापदंड होगा क्या। आप क्रिकेट में ही ले लो, तो मुझे ज्यादा रन बनाने होंगे, उनको कम रन पे आउट करना होगा। ऑब्जेक्टिव तो पता है, कैसे करना है वो बात की स्ट्रेटेजी है कि आपके बैट्समैन कैसे खेलेंगे, पिच कैसी है, ये बात का है, बट आपको ऑब्जेक्टिव तो पता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर हमें इस देश के लिए कुछ बनाना है, अगर एक भारत का एक स्वर्णिम भविष्य है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यही होगा कि भारत के जितने लोग हैं, अगर हमारे 150 करोड़ लोग हैं, तो सभी 150 करोड़ लोग जितने ज्यादा टैलेंटेड होंगे भारत के लिए फायदा होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव तो स्टेट का ये बनता है, सरकार का ये बनता है कि जितने भी लोग हैं वो अपना बेस्ट रियलाइज करें। तो पहला तो ये कि जितने भी लोग हैं वो बेस्ट करें, वो टैलेंटेड हों। जितना ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन टैलेंटेड होगा उतना अच्छा है देश के लिए, इसको तो कोई नकारेगा नहीं। तो जब पहला गोल हमारा है कि सब टैलेंटेड बने। दूसरा क्या है, भारत एक सोसाइटी, एक समाज है, सब लोग टैलेंटेड हैं लेकिन एक समाज में रहते हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए रोटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका सेल्फ स्टीम, सम्मान। एक व्यक्ति चाहता है कि 2 रोटी कम मिले लेकिन मैं सम्मान से जीऊं। तभी तो ये डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हम सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का सम्मान है, आत्मसम्मान। अगर कोई है और उसको केवल इसलिए आप नीचा दिखा दो कि वो ऐसा पैदा हुआ है, तो उसका सम्मान, फैमिली, हाँ, तो उसका सम्मान ही है। इनफैक्ट अगर मैं भी हूं या आप भी हो, कभी किसी ने सैलरी पूछी होगी तो आप बढ़ा के ही बोले होंगे, क्योंकि आप चाहते हो ना वो सम्मान मुझे मिले, है ना। तो हम समाज में मनुष्य ऐसे ही जीता है कि उसको सम्मान मिले। तो 2 बेसिक चीज है भारतीय नागरिक के लिए। एक तो ये है कि भाई सरकार का दायित्व है या भारतीय समाज का दायित्व है कि वो टैलेंटेड बने। दूसरा, उसको सम्मान मिले, वो सम्मानजनक जीवन जिए। क्या जो रिजर्वेशन हमने पिछले 75 सालों में लगाया है, क्या उसने ये चीज सॉल्व की है? वही मेरा प्रश्न है कि क्या रिजर्वेशन एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन को फिक्स कर सकता है जो हो रही तो है? रिजर्वेशन एज अ टूल आप लेके तो आए, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आप देखिए तो ये दोनों जगहों पर रिजर्वेशन जो अभी तक चलता आया है, मैं शुरू के 20 साल 25 साल छोड़ दीजिए, लोग बोलते हैं कि शुरू के 20 साल तक ही रहना था, 25 साल तक ही रहना था, आज तक घसीटता हुआ आया है। क्या उसने ये टैलेंट, लोगों को टैलेंटेड बनाया है भारत में और लोगों को सम्मान दिया है? ये दोनों जगह पे कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि रिजर्वेशन फेल हुआ है। जिस तरह का रिजर्वेशन है, मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैंने खुद उसका बेनिफिट लिया है, बट मुझे किस तरह का बेनिफिट मिलता, या मैंने जो देखा है जिनको रिजर्वेशन मिला है उनको किस तरह का बेनिफिट मिलता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं कैसे देखता। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप रिजर्वेशन जिस तरह से दे रहे हैं उसका तरीका बदलना चाहिए। उसका तरीका ऐसा होना चाहिए, मैं आर्थिक रूप से वीक था, सामाजिक रूप से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जहां आईआईटी के 2 अटेम्प्ट थे सबके लिए या जनरल कैटेगरी के लिए, अभी भी सबके लिए, तो आप ओबीसी को 3 साल दे दो या 4 साल, 4 अटेम्प्ट दे दो, एससी एसटी को और बढ़ा दो, 5 अटेम्प्ट दे दो, 6 अटेम्प्ट दे दो। आपको रिजर्वेशन देना कहाँ है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दोनों चीज में फेल कर रहे हैं। आप जब अटेम्प्ट बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि अटेम्प्ट बढ़ाने से आपने रिजर्वेशन तो उसको दिया ना कुछ तो उसको बेनिफिट दिया। अब जब वो आईआईटी में पहुंचेगा या आईएम में पहुंचेगा या आईएएस बनेगा,
तो इक्वल खुद भी इक्वल फील करेगा वो अंदर फील से। करेगा ना। तो आपको ट्रेनिंग में, प्रिपरेशन में रिजर्वेशन देना है, हाँ, ना कि उस जगह पे रिजर्वेशन दे देना है जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं वो कैपेबल नहीं है, मैं कैपेबल हूं, लेकिन मेरे पास, मैंने एक अटेम्प्ट दिया, मेरे 165 मार्क्स आए। हो सकता है अगर मुझे एक अटेम्प्ट और मिलता तो मैं जनरल के बराबर नंबर ले आता। मेरी कमी क्या है? मेरी कमी ये है कि मेरी फैमिली प्रिपेयर्ड नहीं है। और उसके पीछे रीजन हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के रीजन हो सकते हैं, या हो सकता है कि हम इग्नोरेंट रहे या कुछ और काम करते रहे। अब जो विश्व है वो प्रोग्रेसिव विश्व है, तो उसमें सरकार को सहायता करनी चाहिए। प्रिपरेशन फेज में करनी चाहिए। इससे दोनों चीज सॉल्व होगी। प्रिपरेशन फेज में आप जितने फैक्टर्स उठाइए, आप अगर अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं, आप फॉर्म की फी घटा सकते हैं, आप अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसमें हेल्प कीजिए ना बच्चे की। इससे क्या होगा, जब बच्चा आईआईटी पहुंचेगा, अब कोई बच्चा 2 साल में पहुंच गया है, कोई 3 साल में पहुंच गया है, तो अब जब सारे बच्चे आईआईटी में पहुंचेंगे तो सब सेम मार्क्स पे पहुंचे हैं। तो आपके पास ये जो समस्या आ रही है ना कि नीट पीजी में लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं और वो डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं कि कोई रेडी नहीं है और उसको आप इक्विटी के नाम पे उस जगह पर पहुंचा दे रहे हैं जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। इससे कहीं ना कहीं देश का भी तो नुकसान हो रहा है। देश का नुकसान हो रहा है। तो पहला तो नुकसान हुआ टैलेंट का, कि देश में अब टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे क्योंकि आपने रिजर्वेशन वहां पे दे दिया है जहां पर अभी प्रिपरेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। दूसरा, यही बच्चे जो अभी रेडी नहीं हैं, जब आईआईटी, आईएम या आईएएस जैसी पोजीशन पे जाते हैं तो 2 चीजें उनके साथ होती है। एक तो उनका सेल्फ स्टीम बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि किसी आप SC ST या OBC को सीट दे दीजिए और वो वहां जाकर उसको राजा जैसा फीलिंग आ रहा है। ये पर्सनली मैंने भी देखा है। हाँ, ये क्योंकि उसको पता है ना अंदर से कि मैं कम मार्क्स से यहाँ पर आया हूँ। तो आप कितना भी वहां पर फोर्स कीजिए इक्वालिटी को या इक्विटी को, वो एक इनविजिबल फैक्शन बन ही जाता है। वहां पे लोगों को पता होता है इनके मार्क्स कम थे, मेरे ज्यादा है, वो जनरल का एक अपना ग्रुप बन जाएगा, ओबीसी इधर उधर तैरता रहेगा वो तो Now the diabetes patient saying मेरे ज्यादा है, वो जनरल का एक अपना ग्रुप बन जाएगा, ओबीसी इधर उधर। अभी वहां पर फोर्स कीजिए इक्वालिटी को या इक्विटी को, वो एक इनविजिबल फैक्शन बन ही जाता है। वहां पे लोगों को पता होता है इनके मार्क्स कम थे, मेरे ज्यादा है, वो जनरल का एक अपना ग्रुप बन जाएगा, ओबीसी इधर उधर तैरता रहेगा वो तो थाली के बैगन इधर उधर चलता रहता है उनका। फिर SC ST का एक अपना ग्रुप बन जाता है। इनफैक्ट मैंने मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि मेरे कॉलेज में मतलब मुझे नहीं पता कि कौन किस कास्ट का है, लेकिन एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। मैं उससे कितनी भी बात करने की कोशिश करूँ, मैं बोलूँ चलो साथ में चलते हैं कैंटीन में, कुछ, वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। फिर मैंने सोचा कि भाई ये क्यों ऐसा, इतना क्यों अंडर कॉन्फिडेंट ये फील कर रहा है। तब मैंने उससे पूछा नहीं डायरेक्टली, लेकिन मैंने ही ये रियलाइज किया कि शायद ये SC या ST कम्युनिटी से है, इसकी वजह से खुद में ही इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि वो घुल मिल नहीं पा रहा है हमारे साथ। अब आप सोचिए वो बच्चा, वो IIT के अंदर है, IIM के अंदर है, और वो बच्चा बस इस वजह से उसकी सेल्फ स्टीम अभी तक नहीं बढ़ पाई, जबकि हम स्वतंत्रता के 75 साल बाद आ गए हैं, क्योंकि उसको प्रिपरेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई एक सड़क पर कोई है जिसको कुछ नहीं आता, एक भिखारी है, और उसको आप इक्वालिटी या इक्विटी देने के लिए राजा के बगल बैठा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कैपेबल नहीं है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, बस उसको वो सही समय, सही प्रिपरेशन और ट्रेनिंग और सही इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। आपका काम है उसको टैलेंटेड बनाना। उसके लिए आपको उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको सब्सिडी देनी है, उसको कोचिंग देनी है, उसको स्पेशल इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स देने हैं। वो देंगे ना तो 2 चीजें सॉल्व होंगी, वो टैलेंटेड बनेगा, टैलेंट ग्रो करेगा। दूसरा, उसकी सेल्फ स्टीम इतनी बढ़ जाएगी कि फिर वो, उसको ये नहीं है कि मैं यहाँ पर लाया गया हूँ, ग्रेस मार्क से मैं यहाँ पर आया हूँ। वो आंख में आंख मिलाकर, और ये नहीं है कि आंख में आंख मिलाना बस जबरदस्ती, वो इंटरनल आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और ये कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। मैं IIT में था, ये तो मैं एक छोटा सा सैंपल है मेरे पास, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही होता होगा हर जगह, बट मैंने जो पर्सनली देखा, मेरे बैच में 40 बच्चे थे, कुछ बच्चे SC ST थे, कुछ OBC थे और बाकी जनरल थे। तो आप ड्रॉप आउट रेट देखिएगा, आप देखिएगा कि जो SC ST बच्चे होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि SC ST बच्चे जो IIT में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ बैठेंगे, देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि या तो वो गवर्नमेंट जॉब के भरोसे हैं, उनको लग रहा है कि चलो यहाँ रिजर्वेशन से आए, अब मुझे जॉब भी रिजर्वेशन से मिल जाएगी, क्योंकि एक समय के बाद, और उसमें वो गलत नहीं है, उनकी सिचुएशन सरकार ने ऐसी बनाई है। जब वो रेडी नहीं, आपने उनको आर्मी में डाल दिया, एक हाईली कॉम्पिटिटिव जगह पर डाल दिया जिसके लिए वो रेडी नहीं है। अब वहां वो कोप कैसे करेंगे?
क्योंकि IIT ऐसा तो नहीं आप पहले साल वहाँ मजे चल रहे हैं, हर 2 महीने पे असाइनमेंट है, क्लासेस हैं, और वो इतना, मैं खुद इंग्लिश नहीं बोल पाता था वहाँ, तो मैंने कोप किया है ना चीज़ों को। तो आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं, उस चीज़ के लिए आप कितने रेडी हैं। वहाँ पर आप देखिएगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मेरे सामने एक SC ST ग्रुप का एक बच्चा था, वो गायब ही हो गया 2 साल बाद। कोप नहीं कर पा रहा था, कोप नहीं कर पा रहा है, गायब ही हो गया। और उसके बाद बाकी जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो उसमें चले जाते हैं कि ठीक है यहाँ जॉब नहीं मिलेगी तो हम रिजर्वेशन वाली कोई जॉब ढूंढेंगे। तो आप कर क्या रहे हैं? ठीक है उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट क्या यही गोल है कि किसी को सैलरी मिल जाए? क्या उनकी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है? क्या उनको टैलेंटेड बनाना सरकार का गोल नहीं है? तो मेरा रिजर्वेशन पे ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव देश के सभी नागरिक को टैलेंटेड बनाना है और सभी नागरिकों के अंदर एक आत्मसम्मान लाना है, तो आपको ये पुरानी जो रूढ़िवादी चीज़ें उनसे आगे आना होगा। आप ये फ्रीबीज ही हो गई हैं कि आप फ्रीबी देते चले जा रहे हो। आपको ऐसा सिस्टम डिजाइन करना होगा। रिजर्वेशन बुरा नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन कहाँ अप्लाई करने का तरीका। रिजर्वेशन आपको प्रिपरेशन में देना है। जैसे मैं 165 मार्क्स आए मेरे और मैं IIT में हूँ, तो अब क्या है 4 साल का करिकुलम है, तो पहले साल मैंने मेहनत कर ली तो मैं जनरल के बराबर उस पर आ गया। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में टॉप 5 टॉप 3 में रहा हूँ मैकेनिकल में। क्यों? क्योंकि मुझे वो जो प्रिपरेशन के समय और समय मिलना चाहिए था वो मैंने IIT के फर्स्ट ईयर में लगा लिया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब सरकार ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं ये नहीं किसी को कहने दूंगा कि तुम रिजर्वेशन से आ गए। और अब वैसे क्या आपको कभी अपने कॉलेज लाइफ में ये चीज़ फेस करनी पड़ी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर कुछ? भले दूसरे करे ना करे, इंटरनली फील होता है। क्या होता है इसमें, क्योंकि आपके अंदर मन में है ना कि मेरे मार्क्स कम हैं। जिस सीट के लिए 183 चाहिए आप 165 पे गए हैं, तो आप राजा नहीं बन सकते, कितना भी कोई भी आपको वहां पहुंचाया हो। अब जब मैं गया वहां पर तो मेरे मन में तो था कि मेरे मार्क्स कम हैं, ठीक है, मैं 20 मार्क्स कम में ये सीट मुझे मिली है। अब वो जो मेरे मन में है वो मेरे मन में तब तक रहेगा जब तक मुझे ये लगेगा कि यार मैं कैपेबल नहीं हूँ। हाँ, 2-3 एग्जाम के बाद, सेमेस्टर्स के बाद जब मुझे लगा नहीं मैं इनके बराबर मार्क्स ला सकता हूँ, रैंकिंग भी आने लगी, मेरी रैंक आने लगी, तब मेरे अंदर से वो गया कि नहीं मैं भी कैपेबल हूँ। और इनफैक्ट बहुत ढेर सारे मेरे जनरल फ्रेंड्स भी थे जो जानते थे, वो भी मुझे बोलते थे कि जैसे कि OBC में और भी 1-2 लड़के थे जो बहुत अच्छा करते थे। तो मेरे जो पर्सनल फ्रेंड थे, सारे तो नहीं बोलूँगा, एक मेरा दोस्त था जनरल कैटेगरी में है, विट्ठल। अब विट्ठल के बारे में मैं बताऊँ, ना उसके मम्मी है ना उसके पापा हैं, बचपन में ही चले गए। और कभी वो बुआ के घर में पला बढ़ा, कभी चाचा के घर में। अब सोचिए उसकी कंडीशन तो मुझसे भी खराब है, लेकिन वो जनरल का है। उसने उस कंडीशन में लड़ते हुए 183-4 के ऊपर मार्क्स लाया और वहाँ पर है। और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, क्योंकि वो हिंदी बोलता था, मैं हिंदी बोलता, वो कानपुर का था, मैं अयोध्या का था। उसने मुझे बोला कि तुम ये मत सोचो कि तुम OBC से आए हो, और ये सब सारे बच्चों को लगता है कोई एक्सप्रेस करे या ना करे। वो मुझे बोलता था कि देखो वो भी तो OBC है लेकिन मुझसे ज्यादा मार्क्स पा रहा है, तो तुम भी लाओ भाई, तुम प्रूव करो ना। अब तुम्हें सीट मिल गई तो उसको लेके क्या बैठे रहोगे। तो उसने जब ऐसा बोला तो मैं और लग गया कि भाई अब ठीक है, एक जगह मुझे रिजर्वेशन मिला, अब मैं प्रूव करूंगा। और फिर वो प्रूव करने में वो सेल्फ एस्टीम आ गई, आज मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। तो ये करना है सरकार को कि आप बच्चे जिस जगह पर पहुंच रहे हैं, जिस जगह के लिए बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन जहाँ पर है, बहुत हाई परफॉर्मिंग ट्रेनिंग्स जहाँ पर है, एटलीस्ट वहाँ पर रेडी करके बच्चों को भेजें। नहीं तो आप कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम इक्विटी दे रहे हैं, सॉल्व कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल रिजर्वेशन पे, रिजर्वेशन होना चाहिए, बट रिजर्वेशन कहाँ देना है इसको एक बार सरकार सोचे। तो आई थिंक कि रिजर्वेशन पे तो काफ़ी क्लैरिटी मिली है। अब हम लोग थोड़ा प्रेजेंट सिचुएशन पे भी आते हैं, UGC पे आ जाते हैं, UGC बिल पे आते हैं, UGC पर आते हैं। तो अब UGC को हमने पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि UGC का इंटेंशन तो सही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अगर OBC भी डिस्क्रिमिनेट करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। हाँ। तो जनरल को क्या प्रॉब्लम, मतलब आप जनरल कैटेगरी से हो, आप समझाओ कि आपको क्या समस्या है UGC बिल से, और बिल से ही आप बताओ। एग्जैक्टली। UGC बिल को लेके मेरा पर्सनल ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो हम देख रहे हैं, उसके बारे में हम और बात करेंगे। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाना जरूरी है कि अगर कोई करने की सोच भी रहा है तो वो ना करे।
लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है मेरी एज अ जनरल कास्ट स्टूडेंट इस बिल से, कि इस बिल का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया कि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, वो उस ऑब्जेक्टिव में ही मुझे थोड़ी सी गलती दिख रही है। अच्छा, जैसे ये बिल कह रहा है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, किसी भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन को लेके, रेस को लेके, जेंडर को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, कास्ट को लेके, डिसेबिलिटी को लेके, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेंशन है, particularly in the case of scheduled caste, scheduled tribes, socially and educationally backward classes and economically weaker sections, person with disability or any of them. पर्टिकुलर मेंशन है इनका, इसमें जनरल कास्ट का कोई मेंशन ही नहीं है कि भाई आप ये मेंशन कर दो ना, आप कॉमन मेंशन कर दो कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आपने पर्टिकुलरली इनका मेंशन किया है, और जनरल कास्ट जो कि जनरल के अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने कुछ केसेस देखे हैं कि कर्नाटका में एक लड़का जा रहा था एग्जाम देने के लिए, उसने जनेऊ पहन रखा था, उसको नहीं जाने दिया। ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन ही है ना, आप ब्राह्मण के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उसका जनेऊ देख के। एक और केस है, एक एलएलबी का स्टूडेंट है अक्षत शुक्ला नाम का, उसने सुसाइड कर लिया था। क्यों? वो ब्राह्मण था और उसके चोटी जो उसकी शिखा है और उसके जनेऊ को लेके मजाक उड़ाया जा रहा था, उसने सुसाइड कर लिया था। ये तो हमने केसेस सुने हैं कि एक SC ST स्टूडेंट है, उसको लेके उस डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा था तो उसने किया है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन जो अक्षत शुक्ला के साथ हुआ, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को, UGC को, कि भाई अगर आप डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ला रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव जो सेकंड पॉइंट है बिल का, उसमें आप सबका मेंशन कर रहे हैं, लेकिन जनरल कास्ट का मेंशन नहीं है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। जबकि अभी BHU में भी, मैं BHU से आता हूँ, BHU में मैंने इतना सुंदर कैंपस है, इतना अच्छा वातावरण है, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी BHU में भी ब्राह्मणों के अगेंस्ट स्लोगन लिखे गए। मतलब JNU में तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि स्लोगन्स वगैरह लिखे हुए हैं, स्टार्ट एन ऑनलाइन फैशन स्लोगन्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या मतलब ब्राह्मण बनिया के अगेंस्ट जो JNU में नारे लगते हैं, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो ये चीजें होती हैं ना, ये हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, सोसाइटी में ये भी चीजें हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आप कीजिए ना। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाह रहे हैं तो हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कीजिए। इसके अलावा जो इस बिल का 3(1)(c) है, जो पॉइंट है, जिसमें वो लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं। तो इसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो है जब आप किसी के कास्ट या ट्राइब के लेके उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसको कुछ उसका उल्टा कर रहे हैं, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये सिर्फ OBC, SC और ST के साथ हो सकता है। मतलब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जनरल भी हैं तो भी आपके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो सकता, बाय डेफिनेशन ही नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन गलत है। और फिर जो इसका सबसे खतरनाक पॉइंट मुझे लगता है, पॉइंट 3(1)(e), जिसमें बोल रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ भी, वेदर इट इज इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन तो समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ वाचक मैंने कुछ बोल दिया आपको जबरदस्ती, आपको बुरा लग गया या फिर मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इम्प्लिसिट क्या होता है? अगर मेरा मन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप या फिर कोई स्टूडेंट जो OBC का है, वो मेरे पास बैठने आया, मैं उस टाइम कुछ असाइनमेंट कर रहा हूँ, मुझे बिजी हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई अभी तू जा, मैं बाद में बात करूंगा, तो अब वो उसको मान ले कि भाई ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इम्प्लिसिट में तो कुछ भी आ सकता है ना, आपने इम्प्लिसिट लिख दिया, उसको डिफाइन नहीं किया। ये भी बहुत खतरनाक तरीके से इसका यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज में दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई किसी वजह से, लड़की की वजह से ही लड़ाई होगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होता है। अब उसमें एक है OBC या फिर SC ST कैटेगरी का है और एक जनरल है, EWS भी है। वो भी जाके कंप्लेन कर सकता है ना कि भाई लड़ाई हो गई, अब गलती तो दोनों की है, उसमें कास्ट का कोई एंगल नहीं, लड़की का एंगल है, लेकिन वो उसको उस तरीके से दिखा सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है बिल का, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है और डिस्क्रिमिनेशन का भी जो डेफिनेशन है, उन सब में फ्लॉज हैं। पर इसमें सजल ये भी तो है, मतलब मैंने भी बिल पढ़ा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पनिशमेंट है। अगर कोई आपको एक्यूज करता है, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, तो एक कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी, वो फिर 10 दिन या 15 दिन उस पर रिसर्च करेगी और अगर गिल्टी होगी तब आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो डायरेक्ट आपको पनिश कर दिया जाएगा, उस पर इंक्वायरी बैठेगी और इंक्वायरी बैठने के बाद ही उस पर एक्शन होगा। तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों जनरल कैटेगरी इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है कि
उनको तो कोई भी एक्यूज कर देगा और पनिश कर देगा, जबकि एक बिल में ये सुविधा है, एक प्रोविज़न है कि इंक्वायरी बैठेगी और उसका असेसमेंट होगा और उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इस बिल में यह है कि जो भी कंप्लेन करेगा उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाएगी अगर वो चाहेगा तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 90% ऑफ द केसेस में वो गोपनीय ही रहना चाहेगा, ये मेरा इवैल्यूएशन है। तो उसकी आइडेंटिटी वो हाइड करके, मतलब अगर किसी को दुश्मनी निकालनी है वो ऑफ कोर्स अपनी आइडेंटिटी हाइड करके ही कंप्लेन करेगा। उसकी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं हुई, जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ है उसकी आइडेंटिटी तो पब्लिक हो गई कि भाई इसने किया है, उसकी इज्जत तो गई। उसके बाद मैं इक्विटी कमेटी पे भी ये चीज कमेंट करना चाहता हूँ कि उसमें 6 पॉइंटर्स हैं कि आपको इनको रखना है, जैसे हेड ऑफ जो इंक्वायरी करेगा। हाँ, जो इंक्वायरी करेगा। और उसमें भी ये है कि आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक फीमेल का आपको वो करना है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इस इक्विटी कमेटी में। उसमें भी आपने जनरल कास्ट का मेंशन नहीं किया कि एक जनरल कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। मतलब भले आप ये बोल सकते हैं कि पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी किसी भी कास्ट का हो सकता है, महिला किसी भी कास्ट की हो सकती है, उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर आप इनका पर्टिकुलर मेंशन कर रहे हैं तो जनरल कास्ट का भी एक पर्टिकुलर मेंशन कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत हो रही है। सबसे पहले तो इक्विटी कमेटी के गठन में भी जो चीजें डिस्कस हुई हैं उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। अब फॉर एग्जांपल कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो इक्विटी कमेटी के इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है, तो उसमें अपील का प्रावधान है कि वो लोकपाल के पास जाके अपील कर सकता है, और फिर जिसके ऊपर आरोप लगा है तो वो लोकपाल को जाके कंप्लेन कर सकता है और फिर अपील कर सकता है, और फिर जो इन्वेस्टिगेशंस आगे होगी, मान लीजिए कि बाद में अगर वो निर्दोष पाया गया तो ठीक है, वो निर्दोष पाया गया, लेकिन जिसने कंप्लेन की क्या उसके ऊपर उसको कुछ सजा मिलेगी फॉल्स कंप्लेन की? उसका कोई पॉइंट ही नहीं है इस पूरे रेगुलेशन में। और जहां तक मैंने सुना है कि जो ड्राफ्ट्स बने थे इसके पहले उसमें था ये सेफ्टी गार्ड दिया गया था, लेकिन जो फाइनल रेगुलेशन रिलीज हुआ उसमें सेफ्टी गार्ड हटा दिया गया। इसके पीछे का कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो रेगुलेशंस हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक वर्ग ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा एक तरह से आप दे रहे हैं, तो वो चीज गलत है। तो मतलब काइंड ऑफ ऐसा है कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो उस पर इंक्वायरी बैठेगी, लेकिन अगर इंक्वायरी में ये साबित होता है कि उसने गलत कंप्लेन की है तो उसको सजा नहीं है, और आपकी इज्जत का फालूदा तो हो ही गया। तो ये कुछ चीजें डेंजरस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इस पूरे यूजीसी रेगुलेशन को रोल बैक कर लो, मैं रोल बैक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बिल पर्सनली मैंने पूरा पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि भाई ये लागू होना चाहिए, लेकिन इन अमेंडमेंट्स के साथ लागू होना चाहिए कि ये आप यूनिवर्सल कर दो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अभी जो बिल है उसमें जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और दर्शकों, जाते जाते इस एपिसोड के अंत में मैं इतनी अपील करूंगा अपनी तरफ से कि हमारे जीवन का गोल रिजर्वेशन लेना नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का गोल होना चाहिए टैलेंटेड बनना। उसमें सरकार आपकी सहायता कर रही है। बहुत से बच्चों को रिजर्वेशन मिल जाता है तो वो छोड़ देते हैं चीज़ें। मुझे जब रिजर्वेशन मिला तो मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं वो स्टूडेंट हूँ अपने आईआईटी का जिस पर आईआईटी या आगे आने वाली सभी जनरेशन्स को एक कम से कम हो कि ये कोई था। मुझे रिजर्वेशन मिला, सरकार ने मेरी इतनी हेल्प की, आगे मुझे कभी रिजर्वेशन की आवश्यकता ना पड़े, ना मुझे ना मेरी फैमिली में आने वाली किसी जनरेशन को। इनफैक्ट जब कॉलेज में कंपनीज आना शुरू हुई तो बहुत ढेर सारी कंपनीज रिजर्वेशन पे तो देती नहीं है आपको जॉब, टाटा मोटर्स तो देती नहीं, बट मैं वो पहला बच्चा था पूरे अपने बैच में जिसको टाटा की जॉब मिली थी। तो मैंने मेक श्योर किया था कि मैं किसी भी एंड से अपने टैलेंट को जस्टिफाई इस तरह से कोई ये कह ना पाए कि तुमको तो बस भेजा गया है, मिल गया। तो ये एक सेल्फ एस्टीम की बात है और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं रिजर्वेशन को गोल मत बनाएं। हाँ, आप कहीं कम पढ़ रहे हैं, आपकी कुछ समस्या थी, सरकार ने आपकी सहायता की है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हुए देश के लिए आप कितना बेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि फिर आप उसको एक अपना जीवन जीने का मैकेनिज्म बना लीजिए और I work better under pressure. सरकार का या देश के रिसोर्सेज को आप किसी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। देश को हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि फिर आप उसको एक अपना जीवन जीने का मैकेनिज्म बना लीजिए और सरकार का या देश के रिसोर्सेज को आप किसी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। देश को हम कितना दे सकते हैं।
दूसरा जो मैंने रिजर्वेशन पे बोला कि सरकार को अब ये भी सोचना चाहिए कि रिजर्वेशन किस तरह से देना है कि हम उनका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ा पाएं, हम उनका टैलेंट भी बढ़ा पाएं, और देश में ऐसा ना हो, क्योंकि हम यही तो बात कर रहे हैं कि क्रिकेट में रिजर्वेशन नहीं है तो हम बेस्ट हैं, इसरो में रिजर्वेशन नहीं है तो हम बेस्ट हैं, या जहाँ जहाँ आर्मी है हमारी, या जहाँ जहाँ हमारा रिजर्वेशन नहीं दिखता है, जहाँ हम टैलेंट को ऊपर रखते हैं वहाँ देश अपने आप शाइन करता है। तो अगर हम रिजर्वेशन में भी टैलेंट को ऊपर रख दें, एग्जैक्टली, कि हम टैलेंट बनाएंगे, हमारी जो ऐसी जातियां हैं, ऐसे जो वर्ग हैं जो पीछे हैं, गोल हमारा उनको टैलेंटेड बनाने का है, गोल हमारा ये नहीं कि उनको दे देने का है। दे देने से वही तो समस्या आ रही है कि फ्रीबीज हैं कि हम बिजली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और वो सरकार का जो पॉलिटिकल तंत्र है वो उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। एग्जैक्टली। आप लोगों के अगर कुछ पॉइंट्स हैं इस बिल पर या फिर ओवरऑल रिजर्वेशन पे तो कमेंट में जरूर बताएं। कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी पूछें हम। जय हिंद। ठग ये शब्द कहाँ से आया, हिंदी है या इंग्लिश? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग पर एक बहुत ही दुखद कहानी है। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया गया, जिसमें उन ट्राइब्स के नाम थे जिन्हें अंग्रेज क्रिमिनल ट्राइब्स मानते थे, और इस एक्ट के अंदर इन ट्राइब्स के लोगों का मास जेनोसाइड करना लीगल कर दिया गया। इन्हें वर्मिन्स यानी कॉकरोचेस और रैट्स के बराबर का दर्जा दे दिया गया। इन ट्राइब्स के लोगों को, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो या औरत, इन्हें मारना पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता था। इन ट्राइब्स की गलती बस ये थी कि ये अंग्रेजों द्वारा जंगलों का एक्सप्लॉयटेशन का विरोध कर रहे थे, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि ये ट्राइब्स का नाम और निशान ही मिट जाए, ताकि अंग्रेज भारतीय जंगलों का फ्रीली एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। ऐसी ही एक ट्राइब थी ठग, जिसके मेंबर्स हिंदू मुस्लिम दोनों थे और माँ काली की आराधना करते थे। जब इन पे अंग्रेजों ने अत्याचार करना स्टार्ट किया तो इन्होंने चरखा नहीं उठाया, बल्कि उल्टा अंग्रेजों को ही लूटना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से ठग शब्द लूटपाट का पर्यायवाची बन गया। भारत से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।